Good morning, students. Today we'll be completing the final part of the chapter, that is the numericals which are based on the inverse trigonometric function. Priorly, we have already solved 2 to 3 numericals just for the practice of the derivations properties that we did. Today we'll be completing each and every question from the textbook which are related to this part. Now question number 1 says, these are all proof that numericals cos inverse 3 by 5 plus cos inverse 4 by 5 equal to pi by 2. See, when you solve the questions related to properties, you should know the properties of the chapter and then you have to relate those questions with the given properties. So यहाँ पे I'll start by saying we know that sin inverse x plus cos inverse x equal to pi by 2. ये प्रॉपर्टी हम लोग ने डेरिवेशंस के टाइम पे देखी है. दिस इज प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड और आई गेस थर्ड बेस्ड ऑन द अलाइड एंगल्स. तो नाउ इफ आई वांट टू प्रूव दिस इक्वेशन एज पाई बाय 2, तो व्हाट कैन वी डू इज वी कैन कन्वर्ट आइदर ऑफ द फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ साइन. मतलब मान लो अगर मैंने cos इनवर्स 3/5 ऐसे ही रखा तो इसका कन्वर्जन होगा साइन में और यहाँ पे जो ये नंबर है दैट विल बी कन्वर्टेड टू 3/5. So now let us start by saying let cos inverse 4/5 equal to x. आप ये भी फंक्शन ले सकते हो. तो therefore x is equal to cos x is equal to 4/5. Now we can say we know that cos square x plus sin square x is equal to 1. ये आप पाइथागोरस ट्रिपलेट के फॉर्म में भी कर सकते हो. तो देयरफॉर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस इसका स्क्वायर 16/25. नाउ व्हेन यू क्रॉस मल्टीप्लाई 25 minus 16 it gives you 9/25 and therefore you say sin x is equal to, if I take the root, it is 3/5. Therefore x is equal to sin inverse 3/5. So what did I actually prove? Cos inverse 4/5 और sin inverse 3/5 ये दोनों टर्म्स सेम है because they are related with the variable x. तो अभी ये LHS में cos inverse 3/5 ये फर्स्ट टर्म एज इट इज एंड बिकॉज इंस्टेड ऑफ दिस टर्म, मतलब ये वाले टर्म की जगह पे मैं ये टर्म रिप्लेस कर दूंगा as sin inverse 3/5. And by the property, if sin inverse x plus cos inverse x are added, you get the answer as pi by 2. So this is sin inverse x plus cos inverse x. So this can be written as equal to pi by 2. आप यहाँ पे रीजन लिख सकते हो by property. यहाँ पे अगर आपने लिखा by property A, तो यू कैन जस्ट मेंशन लेट दिस इज इक्वेशन नंबर ए. तो बेसिकली ये एक 3 मार्क्स या फिर मिनिमम 2 मार्क के लिए तो पेपर में आएगा. होपफुली ये सीईटी में अगर आया तो आपको ये एलएचएस दिया जाएगा एंड यू कैन फाइंड द आरएचएस. इन सीईटी आप ये न्यूमेरिकल डायरेक्टली पाइथागोरस ट्रिपलेट से कर सकते हो. कॉस में अगर 3/5 है तो साइन में 4/5 आएगा. कॉस में अगर 4/5 है तो साइन में 3/5 आएगा. अल्टरनेटली यू कैन प्रूव दैट. ऑलराइट. क्वेश्चन नंबर 2. प्रूव दैट tan inverse half plus tan inverse 1/3 equal to pi by 4. This numerical will also start with the property. We know that tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy. सी ये न्यूमेरिकल में मैं आपको और एक हिंट दे सकता हूं कि अगर मुझे ये tan इनवर्स ऑफ द ब्रैकेट, इफ आई हैव टू प्रूव दैट इट इज पाई बाय 4, तो tan पाई बाय 4 की वैल्यू क्या रहती है 1. मतलब अगर मुझे यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ एनी नंबर इक्वल टू पाई बाय 4 लिखना है तो कंपल्सरीली यहाँ पे क्या आना चाहिए तो 1. तो by using such calculations or by using some technique you have to prepare 1 in this bracket. यहाँ पे एक बार 1 आ गया तो tan inverse 1 को आप pi by 4 लिख सकते हो. तो मैं डायरेक्टली LHS फंक्शन से ही स्टार्ट करूंगा. I'll directly use the property x plus y
upon 1 minus x into y equal to tan inverse 3 plus 2 5 divided by ये दोनों का multiplication 6 upon this product 6 is cross multiplied, तो ये 6 into 1 minus 1 मतलब it is again 5 and denominator का 6. Now 5 by 6 upon 5 by 6 the ratio is 1, तो यहाँ पे I get tan inverse 1 and tan inverse 1 is ultimately equal to pi by 4 which is the required RHS. तो जब कभी भी आपको क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में RHS में अगर एंगल दिया है एंड LHS में आपको ऐसे फंक्शंस हैं जो रिलेटेड टू दिस एंगल अवेलेबल है, तो आप ये न्यूमेरिकल डायरेक्टली टेक्निक से भी कर सकते हो या फिर यू हैव टू यूज द प्रॉपर्टी. ये न्यूमेरिकल्स जो हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं दे विल बी मैक्सिमम फॉर 3 मार्क्स बट मिनिमम 2 मार्क के लिए आपको सिलेबस में तो ये पूछा जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3. सी ये न्यूमेरिकल जो है वो एक्चुअली आपके 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस का है, बट यहाँ पे सिर्फ आपको टेक्निकली ये न्यूमेरिकल आपको टेक्निकली सॉल्व करना है. इसमें कोई भी XYZ डिफिकल्ट प्रॉपर्टीज आपको यूज नहीं करनी है. आई विल जस्ट शो यू हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल. आई विल स्टार्ट विथ LHS. tan इनवर्स, ये जो पूरा इक्वेशन है उसको हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल जस्ट राइट दिस इक्वेशन एज इट इज. आई विल जस्ट कैंसल इट आउट. ये जो पूरा इक्वेशन है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे बाय कॉस टर्म. तो इफ आई डिवाइड दिस बाय कॉस व्हाट डू आई गेट इज tan इनवर्स ब्रैकेट में साइन अपॉन कॉस इज tan प्लस कॉस अपॉन कॉस इज 1 डिवाइडेड बाय वापिस सेम cos upon cos 1 sin upon cos tan. Now this equation can be rewritten as, what I'm doing is ये जो 1 है वो 1 को I'll replace by tan pi by 4. समझ में आ रहा है? 1 is replaced by tan pi by 4 plus ये tan x as it is upon 1 माइनस ये tan x जो है इज अननोइंगली मल्टीप्लाइड बाय 1. तो यहां पे आई विल राइट गेटिंग इट. बट tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये जो पूरा ब्रैकेट है व्हाट इज इट डिनोटिंग अस? इट इज एक्चुअली tan ऑफ a प्लस b का रूल. एंड नाउ tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, तो ये दोनों फंक्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे एंड व्हाट डू वी रिमेन इज विथ pi by 4 माइनस प्लस x, एंड दिस इक्वेशन इज नथिंग बट योर RHS. सो यहां पे आई कैन से दिस इज माई RHS. समझ में आ रहा है? सिंपल है. क्या किया? पहले ये इक्वेशन को cos से डिवाइड कर दिया, बाद में ये 1 को मैंने tan pi by 4 लिखा, ये 1 एज इट इज रखा और ये अननोइंगली जो इंटू 1 है उसको pi by 4 लिखा. तो दिस ब्रैकेट बिकम्स अ फॉर्मूला ऑफ tan ऑफ a प्लस b एंड देन द फंक्शन. गेटिंग इट? सिंपल है. तो ये न्यूमेरिकल इज अगेन आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स. जस्ट गो थ्रू दिस न्यूमेरिकल वंस एंड देन आई विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट न्यूमेरिकल. ये जो न्यूमेरिकल है, दिस न्यूमेरिकल वाज एक्चुअली आस्क्ड इन द पेपर ऑफ 2015. I'll just mark it over here. March 2015, and it was asked for 3 marks.
ये बहुत ही रेयर न्यूमेरिकल्स हैं जो जस्ट वंस इन अ टाइम पूछे जाते हैं, बट इफ दे आर आस्क्ड दे विल गिव यू प्रॉपर मार्क्स. Number 4, sine inverse 8 by 17 plus sine inverse 3 by 5 is equal to sine inverse 77 upon 85. This numerical is very important numerical. It has been asked 3 times in the paper and the question is compulsorily for 4 marks. आपको ये numerical अगर within 2 to 3 steps निकालना है then also the method is available. एंड अगर आपको ये न्यूमेरिकल टेक्स्ट बुक के मेथड से करना है तो भी हमारे पास एक ऑप्शन बचा है. इफ यू गो बाय दी डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, फिर भी आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, बट उसके लिए सिर्फ आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए. आई स्टार्ट विद द प्रॉपर्टी डायरेक्टली. वी नो दैट sin inverse x plus sin inverse y is equal to sin inverse x under root 1 minus y square plus y under root 1 minus x square. If you have gone through the property section of the chapter, you will definitely find this property available for that. And now अगर हमको ये प्रूव करना है तो this is my x, this is y, ये डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. So therefore plus is equal to x under root 1 minus y square plus y under root 1 minus x square. यहां पे भी अगर आपको पाइथागोरस के ट्रिपलेट्स पता है तो डायरेक्टली यू विल गेट द आंसर. तो इफ दिस इज 3 5, तो ये 3 5 के साथ 4 आता है पाइथागोरस ट्रिपलेट में. तो 25 माइनस 9 इज 16 अपॉन 25 का रूट इज 4/5. एंड अगर आपको 8 और 17 का पाइथागोरस ट्रिपलेट पता है 15/17. 289 माइनस 64 मतलब 225 and 225 upon 289 is 15/17. Bracket complete. Equal to numerator is 32, this is 45. Denominators दोनों के सेम है which are 85. ये कंबाइन कर दिया. सी यहाँ पे मैंने 5 into 3 ऐसे कुछ किया नहीं है कैलकुलेशन, बिकॉज अगर मुझे दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम मिल रहे हैं तो फिर आई विल नॉट कैंसल दिस पार्ट, सो दैट मुझे डिनोमिनेटर्स डायरेक्टली कॉमन ले सकते हैं हम लोग. एंड नाउ दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स 77/85. समझ में आ गया? तो इफ यू वांट टू प्रूव दिस न्यूमेरिकल बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी जो टेक्स्ट बुक में नहीं है, फिर भी यू कैन यूज दिस, यू विल गेट 4 मार्क्स. और अगर आपको टेक्सचुअल मेथड से ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो उसका मैंने आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रीवियस स्लाइड में भी दिखाया है. मतलब आई गेस 2 to 3 days बैक जो हम लोग ने स्लाइड डाला था उस क्वेश्चन में मैंने कॉस फंक्शन लिया था और उसमें जो मेथड सॉल्व की है दैट इज द टेक्सचुअल मेथड दैट वी हैव यूज्ड. My next numerical is from the board papers, which is October 2014, and the numerical is simple, but यहाँ पे आपको थोड़ा सिर्फ properties का क्या करना है, यूज करना है. The question says 2 sin inverse 3/5 is equal to tan inverse 24/7. Now in the syllabus of inverse trigonometric function एक property हम लोग ने देखी है. We know that 2 tan inverse x is equal to ये वाली. तो अगर मुझे RHS में tan चाहिए तो LHS में भी मुझे tan चाहिए, बट यहां पे मुझे क्या फंक्शन दिया है, साइन. तो व्हाट आई विल डू इज फ्रॉम दिस साइन फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फाइंड cos
एंड देन साइन अपॉन कॉस करके मैं tan का फंक्शन निकालूंगा एंड देन यूजिंग tan वी कैन फाइंड द tan इनवर्स वाला पार्ट. तो नाउ हाउ डू वी स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल? लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू ऑफ वेरिएबल x या फिर वेरिएबल अल्फा, जो भी चाहिए वो. तो देयरफॉर x इज साइन x इज इक्वल टू 3/5. तो अगर साइन x 3/5 है तो cos square x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x. सही है. देयरफॉर 4/5 and hence I can say tan x is equal to sin upon cos 3/4. 5 कैंसल. अगर आप डायरेक्टली ट्राइंगल से ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो यू कैन डू दैट. एंड इफ tan x is equal to 3/5 तो I have x is equal to tan inverse, I'm sorry 3/4. मतलब ये साइन इनवर्स 3/5 और ये tan इनवर्स 3/4 दे आर वन एंड द सेम. तो अभी ये जो LHS मुझे दिया है 2 साइन इनवर्स 3/5, उसकी जगह पे आई विल राइट 2 tan इनवर्स 3/4. तो दिस इज 2 tan इनवर्स 3/4 which is equal to, use the property, tan inverse 2x upon 1 minus x square. अब ये सॉल्व करो. 4 ये 2 न्यूमरेटर में आ गया 3/2. 16 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 16 माइनस 3 इज 16 माइनस 9 आएगा 7. और इसके बाहर वी हैव टू राइट tan इनवर्स. तो दिस इज tan इनवर्स ये 3/2 और ये 16/7 रेसिप्रोकल हो जाएगा. नाउ 2 1s are 2 8s are and 3 multiplied by 8 you get as 24. So now this equation will be written as tan inverse 24/7. समझ में आ रहा है? See यहाँ पे you have to adjust the numerical according to the properties, adjust the question if you know the properties very well. और वो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी आपको एक्स्ट्रा फंक्शंस की जरूरत है वो फंक्शंस आप स्टेप बाय स्टेप 1 by 1 आप यहाँ पे डिराइव कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 6, अ वेरी रिसेंटली आस्क्ड क्वेश्चन. मार्च 18 में क्वेश्चन पूछा गया है, मार्च 19 में ये क्वेश्चन पूछा गया है. दिस क्वेश्चन गिव्स यू अ 4 मार्क्स न्यूमेरिकल. अ वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, अ स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल जिसमें सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है एंड वो प्रॉपर्टी है tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse of x plus y upon 1 minus xy. ये प्रॉपर्टी आपको ये न्यूमेरिकल में टोटल 3 टाइम्स यूज करनी है. हाउ? पहले इसका पेयरिंग होगा जहां से आपको एक tan इनवर्स मिलेगा, इसका पेयरिंग होगा जहां से आपको दूसरा tan इनवर्स मिलेगा और वो दोनों tan इनवर्स कंबाइन करके आपको फाइनल वाला मिलेगा जिसमें आपको आंसर RHS में π/4 चाहिए. तो ब्रैकेट में आपका आंसर क्या आना चाहिए? 1. क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस न्यूमेरिकल में ही बताया है कि tan इनवर्स 1 की वैल्यू हमेशा कितनी आती है? π/4. नाउ हाउ डू वी सॉल्व दिस? वेरी इजी. LHS, I'll combine these two. आपको चाहिए तो आप कोई भी 2 फंक्शंस कंबाइन कर सकते हो. आई एम जस्ट सॉरी, यहां पे द नंबर इज 5. तो नाउ माय क्वेश्चन विल बी tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy. तो यहां पे आई डायरेक्टली राइट 35
ब्रैकेट ये दोनों ऐड करने हैं 1 माइनस 1/24. अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो 7 प्लस 5 इज 12/35 divided by 35 minus 1 34/35 plus tan inverse 8 plus 3 11/24 and 24 minus 1 23/24. समझ में आ रहा है? सिंपल है. नाउ 35 कैंसिल 24 कैंसिल. आप ये 12/34 रिड्यूस कर सकते हो एज 6/17. So now finally what do I get is tan inverse 6/17 plus tan inverse yes. now वापस x plus y. तो ये प्रॉपर्टी आपको रिपीट करनी है. तो यहां पे I'll write this is equal to x plus y one minus 6 11s are 66 and 17 23s are 391. कैसे आ गया? अभी अभी आपको यहाँ पे अगर टाइम वेस्ट नहीं करना है तो थोड़ा दिमाग लगाओ. डायरेक्टली यहाँ पे 1 लिख दो क्योंकि आपको आंसर क्या चाहिए π/4. एंड इफ यू वांट टू डू इट सीरियसली यू कैन डू इट. 23 6 से मल्टीप्लाई होगा 138. 17 11 से मल्टीप्लाई होगा 187 डिवाइडेड बाय 17 इंटू 23 जो ऑलरेडी लिखा है 391. 391 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा -66. तो यहां पे आपको मिलेगा 325. एंड नाउ इफ यू ऐड द न्यूमरेटर इट इज 325 अपॉन 325 विच इज 1 एंड tan inverse 1 is π/4 and this equation will be your RHS. Have you understood कैसे कैलकुलेशंस किए हैं? तो एक प्रॉपर्टी यू हैव टू यूज 3 टाइम्स इन दिस न्यूमेरिकल एंड ये क्वेश्चन 2 बार अब तक के सिलेबस में 4 मार्क्स के लिए कंसेक्यूटिव पेपर्स में रिपीट हो चुका है. नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 7. We have to prove that tan inverse root x is equal to half cos inverse ब्रैकेट में 1 minus x upon 1 plus x. ये न्यूमेरिकल में I have to make a simple substitution. वो substitution क्या रहेगा? तो I'll say put x is equal to tan square theta and this substitution will be done on the RHS. Why? Just go through this. Half cos inverse 1 minus tan square theta by 1 plus tan square theta. What is 1 minus tan square upon 1 plus tan? We get theta. But what is theta का नंबर? तो यहां पे देखो, अगर मैंने पहले ये इक्वेशन का रूट ले लिया तो मुझे मिलेगा tan theta is equal to root x and what do I get? Theta as tan inverse of root x. तो ये जो थीटा है उसको मैं किससे रिप्लेस करूंगा? root x and this is nothing but my RHS. I'm sorry, LHS. समझ में आ गया? Why did I put x is equal to tan square theta? मान लो अगर आपको ये न्यूमेरिकल ये फॉर्म में नहीं आ रहा है तो आप इसको और एक फॉर्म में कर सकते हो. I'll just give you the hint for that. ये जो 2 है वो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स. एंड आपको 2 tan इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला कॉस के फॉर्म में ऑलरेडी पता है. क्या था वो? 2 tan इनवर्स x. नोट में लिखूंगा आई 2 tan inverse x is equal to cos inverse
1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको x की जगह पे सिर्फ क्या रिप्लेस करना है, रूट एक्स। तो रूट एक्स का स्क्वायर क्या आएगा, x, एंड डिनोमिनेटर में भी सेम। तो LHS is equal to RHS. Have you understood this? Now the numericals, remaining numericals will be done in the next slide. Question number 8. This numerical was asked in the paper of October 2018 and October 2013 के पेपर में ये न्यूमेरिकल पूछा गया है। ये न्यूमेरिकल में एक्चुअली while proving this equation we have to make some transitions। मतलब क्या, ये जो -9/4 का क्वेश्चन पार्ट है वो हम लोग RHS में शिफ्ट कर देंगे एंड देन विल प्रूव दैट 9/4 साइन इनवर्स द ब्रैकेट प्लस 9/4 साइन इनवर्स द ब्रैकेट इज इक्वल टू 9π/8। तो एक्चुअली आई विल स्टार्ट विथ RHS एंड RHS में मेरे पास क्या है, 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। अभी नाउ ये दोनों टर्म्स में से आप 9/4 कॉमन निकाल लो, तो ब्रैकेट में आपको सिर्फ साइन के दो टर्म्स मिलेंगे प्लस अभी ये न्यूमेरिकल भी थोड़ा लॉजिकल है। अगर मुझे RHS में 9π/8 चाहिए तो उसमें से 9/4 तो ऑलरेडी है, तो क्या बचा, π/2। तो हाउ इज π/2 रिलेटेड विथ साइन, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की अगर मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज नथिंग बट साइन इनवर्स ऑफ सम ब्रैकेट। तो वो ब्रैकेट में ऐसा क्या नंबर आना चाहिए जिसका साइन इनवर्स लेने के बाद मुझे आंसर आएगा π/2, तो आंसर इज 1। तो ये कैलकुलेशन आपका ऐसे होना चाहिए कि ब्रैकेट में आपको कंपल्सरीली आंसर 1 आना ही चाहिए। तो वो कैलकुलेशंस आप कैसे कैरी आउट करोगे, तो देखो, नाउ द प्रॉपर्टी इज x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो अगर आप 2√2/3 का स्क्वायर करते हो तो व्हाट डू यू गेट, दिस इज 4, दिस इज 2, मतलब 8, तो 8/9। गेटिंग इट? सो 9/4 साइन इनवर्स, 9 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 9 माइनस 1 इज 8/9, तो 8/9 का रूट कितना आएगा, 2√2/3। तो 2√2 इंटू 2√2 इज बेसिकली 8 एंड डिनोमिनेटर में 3 3s इज 9, तो ये हो गया 8/9 प्लस ये 1/3, 9 माइनस 8 इज 1/9, उसका रूट 1/3, तो 1/3 इंटू 1/3 1/9, and if you add 8/9 plus 1/9, what answer do you get? 1 आ गया ऑटोमेटिकली 1। and what is sin inverse 1? it is π/2, so 9/4 into π/2, and hence this is equal to 9π/8, which is your LHS। तो एक्चुअली मैंने ये टर्म को शिफ्ट करने के बाद मैंने ये फॉर्मूला यूज किया, एंड आपको अगर चाहिए तो यहाँ पे आपने जो प्रॉपर्टी यूज की है वो प्रॉपर्टी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। व्हाट प्रॉपर्टी वी हैव यूज्ड इन दिस न्यूमेरिकल, आई विल जस्ट राइट इट डाउन ओवर हियर। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y will be sin inverse x under root 1 minus y square plus y under root 1 minus x square। समझ में आ रहा है? Are you able to digest this numericals? See, मैंने आपको बताया था कल कि I'll be solving the completing the entire part today, but then these numericals आपको थोड़ा बहुत सॉल्व करने के बाद, दिमाग में बैठने के बाद ही आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। तो व्हाट विल डू इज, टोटल 14 न्यूमेरिकल्स है, तो उसमें से 8 न्यूमेरिकल्स हम लोग आज करेंगे, एंड रिमेनिंग का जो मैंने रिकॉर्ड करके रखा है
बट रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स का जो वीडियो है वो मैं कल के दिन के लिए बचा के रखूंगा. आई विल अपलोड दैट टुमारो बिकॉज दिस इज ऑलरेडी अ हाफ एन आवर न्यूमेरिकल सेशन. तो उसको जब आप वीडियोस लेक्चर्स पॉज करके देखोगे तो थोड़ा बहुत आपको टाइम लगेगा एंड इट विल बी easy for you to digest the numericals one by one. So for today, these 8 numericals are more than enough. And one more thing I just want to share with you is, as per the government rules, we are not still able to decide ki when are we going to start with the classroom lectures. We'll be trying to start it as soon as possible. But then if the permission is not given to us, we will not be able to start the lectures. So please don't wait for the classroom lectures to begin and then you study your part. The days are passing, the months will be passing. Later you will have very less time for your syllabus to complete, to revise. So now what I am thinking is कि you please start studying the chapters thoroughly. And again I am repeating, अगर कोई भी आपको doubt है तो Monday to Saturday में इवनिंग सेशंस में 5 to 6 में, अगर वो 5 to 6 का भी अगर आपको वो सेशन नहीं सूट हो रहा है तो आप अपना एक टाइमिंग खुद का डिसाइड करो एंड मुझे आप रिवर्ट बैक कर दो कि हम लोग ये टाइम पे आने वाले हैं. वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर दिस. जस्ट आई वाज गोइंग थ्रू वन ऑफ द बुक स्टोर एंड आई फाउंड अ वेरी गुड बुक ऑफ अरिहंत. दैट बुक हैज the entire syllabus के formulas right from 11th standard to 12th standard CET JEE सारे formulas उसमें है and that book I'll be providing you on behalf of the classes. तो वो books जो है वो मुझे एक 3 to 4 days में available हो जाएंगे. तो जिस किसी ने भी फीस स्ट्रक्चर अपना क्लियर किया है, भरा है, इन स्टार्टिंग इंस्टॉलमेंट पे किया है, उनको ही वो बुक मिलेंगे. So those who have paid the fees or they are yet willing to pay the fees, please complete those as soon as possible. Thank you.